Good morning, children. This is part 2 of the chapter Admission of a Partner. The topic to be discussed here is accounting treatment of goodwill. At the time of admission of a partner, there can be the following situations regarding treatment of goodwill. Basically, there are many cases. Few cases are discussed in this video and the questions based on that, and few cases will be discussed in the upcoming video. So whenever a new partner joins the firm, we have discussed in the previous part that he is required to bring his share of capital and goodwill in cash. So at the time of the admission, what will be the treatment of the goodwill that are discussed below. Case number 1, when premium for goodwill is paid privately. मतलब जब नया पार्टनर फर्म में पैसे ना ला करके प्राइवेटली आउट ऑफ द फर्म सेटलमेंट करके गुडविल का पैसा दे देता है, तो क्योंकि वो प्राइवेटली पे कर रहा है, वो फर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए उसकी कोई भी अकाउंटिंग नहीं होगी. If a new partner is paying amount of goodwill privately outside the business, no entry will be passed for this purpose. Case number 2. When new partner brings his share of goodwill in cash. जब नया पार्टनर अपना goodwill कैश में लेकर के आता है. In this method, there are two alternatives when the amount of goodwill brought in by new partner is retained in the business. Following two entries will be passed for this purpose. जब भी नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर ले करके आता है, तो वो जो गुडविल का शेयर है, always the goodwill brought in by the new partner will be distributed among the old sacrificing partner. जो भी गुडविल नया पार्टनर लेकर के आ रहा है, वो गुडविल उन्हीं पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी जो कि सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने शेयर में से कुछ शेयर नए पार्टनर को सैक्रिफाइस करके दे रहे हैं, इसलिए उनको एज अ कॉम्पेंसेशन नए पार्टनर की गुडविल का शेयर मिलता है. अब इस गुडविल के दो सिचुएशंस या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं. पहला कि ये गुडविल पुराने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बिजनेस में रिटेन कर लें, बिजनेस में पड़े रहने दें, और दूसरा जब उन्हें गुडविल मिल जाती है तो वो बिजनेस में छोड़ने के बजाय वो उसको विड्रॉ कर सकते हैं. तो उन दोनों ही केसेस में एंट्रीज कैसे होंगी, लेट अस डिस्कस. इन दिस मेथड, as we have read, there are two alternatives. So the first entry which will be passed in both the cases, whether they are retaining it or they are withdrawing it, the first entry will be the same. Cash or bank account debited to new partner's capital account to premium for goodwill account, being amount of goodwill brought in by new partner. ये एंट्री कॉमन है, दोनों ही ऑल्टरनेटिव्स में पास होगी, और ये एंट्री हम पास कर रहे हैं नए पार्टनर की गुडविल और कैपिटल को रिकॉर्ड करने के लिए. जब वो गुडविल और कैपिटल के लिए पैसा बिजनेस में लेकर के आएगा तो कैश इज कमिंग इन, देयरफॉर इट विल बी डेबिटेड. वो कैपिटल के नाम पे पैसा आ रहा है, कैपिटल फॉर्म के लिए एक लाइबिलिटी है, देयरफॉर लाइबिलिटी कैरीज अ क्रेडिट बैलेंस, इसलिए हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे. एंड the amount which he is bringing for goodwill, that will be transferred to a new account to premium for goodwill account. It will be credited. Why? Because it belongs to the sacrificing partners. The second entry will be premium for goodwill account debited to sacrificing partners capital or current account. जो प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर लेकर के आया था और हमने क्रेडिट करी थी, अब उसी प्रीमियम फॉर गुडविल को हम पुराने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, वही पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड विच इज़ बीइंग फॉलोड एज वी हैव डिस्कस्ड इन द फंडामेंटल्स चैप्टर. तो प्रीमियम फॉर गुडविल जब रिसीव किया था तो क्रेडिट किया था, जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे. ये गुडविल का पैसा जब हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में डालेंगे तो उससे उनका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, यानी लाइबिलिटी फॉर्म की और बढ़ जाएगी, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया.
and the narration can be being amount of goodwill distributed among the old sacrificing partners in the sacrificing रेशियो। और ये गुडविल हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। उसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। When goodwill brought in by new partner is withdrawn by the sacrificing partners, अगर रिटेन कर रहा है तो सिर्फ वो दो एंट्री होगी जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करी। बट अगर ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल मिलने के बाद अगर वो विड्रॉ भी कर लेता है तो पहली दो एंट्री तो सेम रहेगी, थर्ड एंट्री आ जाएगी विड्रॉल की। एन एडिशनल एंट्री टू द अबव टू एंट्रीज विल बी पास्ड फॉर विड्रॉल। द एंट्री फॉर विड्रॉल विल बी sacrificing partners capital or current account debited to cash or bank account being the amount of goodwill withdrawn by the old partners। जब पार्टनर्स को गुडविल का पैसा उनके अकाउंट में दिया था तो क्रेडिट किया था क्योंकि कैपिटल एक लाइबिलिटी है, वो बढ़ गया था। बट अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं, अगर वो निकाल करके जा रहे हैं तो उनका कैपिटल बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे। और जब वो विड्रॉ करेंगे तो वो कैश में या बैंक से निकालेंगे तो कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए हम कैश या बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री उसी अमाउंट से पास होगी जितना वो एक्चुअली विड्रॉ कर रहे हैं। अगर वो पूरा विड्रॉ कर ले रहे हैं तो ये पूरे से होगी, अगर वो हाफ विड्रॉ कर रहे हैं तो ये एंट्री हाफ अमाउंट से होगी, एंड सो ऑन। लेट अस डिस्कस एन एग्जाम्पल। L, M and N are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. They admit O into partnership. O brings in cash rupees 4,50,000 as capital and rupees 1,50,000 as goodwill for 1/5 share of profits. Pass journal entries and find out new profit sharing ratios when goodwill is retained in the firm and goodwill is withdrawn by old partners। मतलब इसमें दोनों ऑल्टरनेटिव्स आपसे पूछ लिया है। 3 पार्टनर्स हैं LMN, उनका PSR ओल्ड PSR है 3:2:1। न्यू पार्टनर O आ रहा है जो 4,50,000 ला रहा है कैपिटल के लिए और 1,50,000 ला रहा है गुडविल के लिए, यानी वो टोटल 6 लाख रुपीज़ लेकर के आ रहा है। उसका शेयर रहेगा प्रॉफिट में 1/5 और आपको इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है और न्यू PSR कैलकुलेट करना है जब गुडविल रिटेन कर रहे हैं फॉर्म में या फिर एंड जब हम गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं। लेट अस सी द कैलकुलेशन फॉर न्यू PSR। सिंस नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन दिस केस, वी विल अज्यूम दैट द ओल्ड पार्टनर्स विल शेयर द रिमेनिंग शेयर इन देयर ओल्ड रेशियो। सो लेट द शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर कितना होगा 1 - 1/5 दैट इज़ 4/5। ओ को उसका शेयर देने के बाद जो बचेगा वो कितना बच रहा है 4/5, और ये 4/5 L और M और N ले लेंगे 3:2:1 में। तो L 4/5 का लेगा 3/6 दैट इज़ 2/5। ये सिंप्लीफाई करके बताया है, अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 12/30 लिखना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। देन M का शेयर है 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, मतलब वो रिमेनिंग शेयर का 2/6 लेगा, सिंप्लीफाई करके आया है 4/15। आप चाहें तो और उसको कर सकते हैं 8/30 कर सकते हैं। एंड N का शेयर है 1/6, तो वो रिमेनिंग शेयर 4/5 का 1/6 लेगा दैट इज़ 2/15 है। इसमें आप चाहें तो 4/30 भी लिख सकते हैं, ये बेसिकली सिंप्लीफाई कर दिया है। और O का शेयर है 1/5। तो 2 का डिनोमिनेटर 5 है और 2 का डिनोमिनेटर 15 है, तो हम 5 को 15 में कन्वर्ट करेंगे और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा। अब जैसे L का शेयर है 2/5, तो 5 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 2 दैट इज़ 6/15। देन M का तो 4/15 है ही, N का 2/15,
ओ का भी 1/5 है, तो 5 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और वही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 1 इंटू 3 इज़ 3/15। तो हमारा न्यू PSR अल्टीमेटली बन जाएगा 6:4:2:3। दिस इज़ द कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR. Let us have a look at the case number A, that means when the amount of goodwill is retained in the firm. और जब भी goodwill firm में retain होती है तो दो ही entry होती है. First entry for capital and goodwill brought in by the new partner, and second entry for distributing goodwill among the old sacrificing partners. And one more thing, children, whether you have to pass 2 entries or 1 entry or whatsoever it is, you have to do it in the format of journal, otherwise your marks will be deducted as per the rule of the council. So as you can see, we have made the format of journal, date, particulars, ledger folio, debit and credit. So the first entry is bank account debited, because money is coming in. And how much money is coming in? Total 6 lakh. To O's capital account. O, that is new partner, अपने कैपिटल के नाम पे कितना पैसा लेकर के आ रहा है? 4,50,000. एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,50,000. वो 6 लाख रुपीज़ ला रहा है, जिसमें से 4,50,000 वो कैपिटल के लिए ला रहा है और 1,50,000 वो प्रीमियम के लिए ला रहा है, गुडविल के. नरेशन, अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल और प्रीमियम ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर. बेटा नरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. If you do not write, your marks will be deducted, so please write it. The second entry will be premium for goodwill account debited. The second entry is basically for distributing the amount of goodwill among the old sacrificing partners only. Since here no information is given about the sacrifice, therefore we will assume that the partners are sacrificing in their old ratio. मतलब जो उनका ओल्ड रेशियो था 3:2:1, हम उसी को उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे. दैट मीन्स इट इज़ बट obvious that each partner is sacrificing. So this goodwill will be distributed among the 3 partners L, M and N in 3:2:1. So premium for goodwill debited 1,50,000, to L's capital account 75,000, to M's capital account 50,000 and to N's capital account 25,000. ये 1,50,000 के गुडविल को हमने 3:2:1 में डिवाइड कर दिया है. तो L को 1,50,000 का 3/6 मिलेगा, M को 2/6 मिलेगा और N को 1/6 मिलेगा. केस B, when the amount of goodwill is withdrawn by old partners. मतलब जितना गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को मिला उन्होंने पूरा विड्रॉ कर लिया. तो इसमें फर्स्ट 2 एंट्रीज विल बी द सेम for capital and goodwill brought in by the new partner and for distribution of goodwill to the sacrificing partners. An additional entry for withdrawal will be passed. L's capital account debited 75,000, M's capital account debited 50,000, N's capital account debited 25,000 to bank account 1,50,000. बैंक क्रेडिट किया है बिकॉज जब वो विड्रॉ करेंगे तो बैंक से पैसा चला जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा. और उनका कैपिटल इसलिए डेबिट किया है क्योंकि जब वो विड्रॉ कर लेंगे तो उनका कैपिटल भी कम हो जाएगा, लाइबिलिटी कम हो रही है, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे. एंड द नरेशन कैन बी अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स. क्वेश्चन नंबर 2. Anju and Manju are partners sharing profits and losses in the proportion of 7:5. They agreed to admit Meenu, their manager, into partnership, who is to get 1/6 share in the business. Meenu brings in rupees 2 lakh for her capital and 96,000 for 1/6 share of goodwill, which she acquires 1/24 from Anju and 1/8 from Manju. The profit for the first year of the new partnership amount to rupees 4,80,000. Make the necessary journal entries in connection with Meenu's admission and distribute the profit between the partners. Anju and Manju 2 partners हैं जिनका ओल्ड रेशियो है 7:5
उन्होंने मीनू को, जो उनके यहाँ पे एक मैनेजर थी, उसको एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए। मीनू 2 लाख रुपीज़ कैश में लाएगी अपने कैपिटल के लिए और 96,000 लाएगी अपने गुडविल के लिए। मीनू का शेयर रहेगा 1/6, जो कि उसको मिला है 1/24 अंजू से और 1/8 मंजू से। मतलब ये अंजू एंड मंजू का, क्योंकि फ्रॉम वर्ड दिया है, तो ये अंजू और मंजू का सैक्रिफाइसिंग शेयर है। द फर्स्ट ईयर जो न्यू पार्टनरशिप है, मतलब तीनों पार्टनर्स की मिला के जब उन्होंने काम किया, तो जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आया दैट केम टू 4,80,000। तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है मीनू के एडमिशन के टाइम पे और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के। तो क्योंकि यहाँ पे विड्रॉल का कोई बात नहीं किया है, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन इट विल बी अज्यूम्ड दैट गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। और क्योंकि यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर दिया है 1/24 एंड 1/8, तो इसी से आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो बना सकते हैं। इसी को बस आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। तो 8 एंड 24 डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आपको 8 को 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 3। तो 8 इंटू 3 इज़ 24, उतना ही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 1 इंटू 3। तो आपका मंजू का सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आएगा दैट विल बी 3/24 और अंजू का 1/24। डिनोमिनेटर सेम हो गया, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1:3। Let us have a look at the calculation of new PSR. अंजू का ओल्ड रेशियो था 7/12, क्योंकि 7:5 था, तो 7 + 5 दैट मीन्स 12, माइनस अंजू का सैक्रिफाइसिंग शेयर था 1/24, इट केम टू 14 - 1/24, क्योंकि एलसीएम हमने 24 का लिया। तो अल्टीमेटली द न्यू रेशियो ऑफ अंजू केम टू 13/24। मंजू का ओल्ड रेशियो था 5/12 माइनस मंजू का सैक्रिफाइसिंग शेयर था 1/8, यानी कि जब हमने 12 और 8 का एलसीएम निकाला तो इट केम टू 24, दैट मीन्स 10 - 3/24। तो मंजू का न्यू शेयर आ गया 7/24 और मीनू का शेयर था 1/6। 6 को 24 में कन्वर्ट करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 4 दैट इज़ 4/24। So the new ratio of the three partners will be 13:7:4। और इसी रेशियो में आप नए फर्म की पार्टनरशिप का जो भी प्रॉफिट है दैट इज़ 4,80,000 इसको कैलकुलेट करेंगे। तो द शेयर ऑफ प्रॉफिट of Anju will be 4,80,000 multiplied by 13/24, that is 2,60,000. Manju 4,80,000 multiplied by 7/24, that is 1,40,000. And Meenu 4,80,000 multiplied by 4/24, that is 80,000. Let us have a look at the journal entry. The first entry will be for the goodwill brought in by the new partner. The entry will be bank account debited 2,96,000 to Meenu's capital 2 lakh and to premium for goodwill account 96,000. मीनू अपने कैपिटल के लिए 2 लाख ला रही है और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 96,000 लेकर के आ रही है। टोटल वो लेकर के आ रही है 2,96,000। तो बैंक में हमारा डेबिट हो जाएगा 2,96,000, मीनू के कैपिटल में क्रेडिट होगा 2 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल में क्रेडिट होगा 96,000. Narration will be for amount of capital and goodwill premium brought in in cash. The second entry will be for distributing this premium for goodwill in the sacrificing ratio that we have already calculated. I explained you that is 1:3. सो जब प्रीमियम रिसीव किया था तो क्रेडिट किया था, अब जब उसे ट्रांसफ़र या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम डेबिट कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 96,000 और जब हम पार्टनर्स को ये ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को जब ये गुडविल देंगे तो उनका कैपिटल बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे। अगर फिक्स मेथड होता तो हम करेंट में डालते।
To Anju's capital account 24,000, to Manju's capital account 72,000. For goodwill or premium transferred to old partners capital in sacrificing ratio, that is 1:3. हमने 96,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में 1:3 में. यहाँ पे आपको प्रॉफिट की एंट्री नहीं करनी थी, सिर्फ उसका डिस्ट्रीब्यूशन शो करना था. दैट वी हैव ऑलरेडी शोन. So I hope the two cases discussed in this video is clear to you and the questions. This is the assignment based on the topic taught here. You have to answer the following questions in your register. You have to give question number 1. Give the journal entry for goodwill and capital brought in by a new partner. The entry will be bank account debited to new partner's capital account to premium for goodwill account. Second question, give the journal entries for distributing premium for goodwill among the old sacrificing partners. The entry will be premium for goodwill account debited to old sacrificing partners capital or current account. Question number 3. You have to solve practical question number 17 and 18 from the chapter Admission of a Partner of Accounts book by D.K. Goel Volume 1. These two questions are purely based on the type of questions we have discussed here and the topic. So go through the video once again, practice the PSR questions, learn the formula and do as many questions as you can. Thank you children. Take care.